Hello students, this is Disha welcoming you to Dikshant's EduTech. Today I am going to take English of class 10 and today's topic is A Tiger in the Zoo. It's a poem from First Flight. This is a beautiful poem written by Leslie Norris. His full name is George Leslie Norris. So, in this poem, he has tried to describe how a tiger behaves in the zoo and how he behaves outside the zoo. So, he has tried to bring the compare and contrast between a tiger in the zoo and a tiger outside the zoo. So before I give a brief introduction about the poem, I would first of all like to tell you something about the poet Leslie Norris. So this is George Leslie Norris. His full name is George Leslie Norris, but he is known by the name Leslie Norris. George Leslie Norris was born on 21 May 1921 and he died on 6 April 2006. And he was a prize-winning Welsh poet and short story writer. So he is remembered as a Welsh poet as well as a short story writer. He taught at academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. So first of all, he worked as a teacher and he had worked in so many institutions. Firstly, he has worked in Britain and the United States, and also he has worked at Brigham Young University. Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period. नॉरिस ये बहुत ही विख्यात पोएट के रूप में उभरे, बहुत ही विख्यात राइटर के रूप में उभरे और इन्हें वेल्स राइटर के नाम से जाने जाते हैं और बेसिकली पोस्ट वॉर पीरियड. ओके, एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैव वन मेनी प्राइजेस. और उनके साहित्य में वो इतना नाम हासिल किए, इतना अच्छा इनका लेखन रहा कि इन्हें ढेर सारे प्राइजेस से नवाजा गया. Now, a brief introduction of the poem. The poem written by Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. ये जो कविता लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, ये क्या बताता है? एक टाइगर का लाइफ कैसा रहता है जब वो जू में कैद रहता है, एक पिंजरे में कैद रहता है, एक चिड़ियाघर में कैद रहता है, बिहाइंड द बार्स. हाउ हेल्पलेस हिज लाइफ बिकम्स. ही लिव्स इन अगोनी एंड हेल्पलेसनेस. वो एक असहाय जिंदगी जीता है जहां वह खुले खुले वातावरण में जी नहीं सकता. जैसे कि टाइगर इन द फॉरेस्ट, और टाइगर इन द फॉरेस्ट जब बाहर में रहता है, लिव्स इन आउटसाइड द जू, it looks different. Okay, the poet explains what his life could be if he had been a free animal. यहाँ कवि यह बताने का कोशिश किए हैं कि ये टाइगर जो कि एक पिंजरे में बंद है, अगर इसे एज ए फ्री एनिमल बाहर निकाल दिया जाए, पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए, ये अपना जिंदगी अगर जंगलों में जिए तो इसका लाइफ बिल्कुल अलग रहेगा. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. और यहाँ कवि ने यह बताने की कोशिश किया है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए एनिमल्स को, टाइगर हो या लायन हो या और कोई एनिमल्स हो, उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए. लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनिमल्स को फ्रीडम मिलना चाहिए. इनके अनुसार एनिमल्स को फ्रीडम मिलना चाहिए जिससे कि वह फ्रीली रह सके, घूम सके अपने सराउंडिंग में. लेकिन जब कोई भी जानवर को, मान लीजिए टाइगर की बात हो रही है, अगर इसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो ये बिल्कुल हेल्पलेस दिखेगा, असहाय दिखेगा, एंड ही वुड लिव इन अगोनी.
excuse me. The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in a little cage. ये कविता किस प्रकार से शुरुआत होता है? एक टाइगर का व्याख्या से शुरुआत होता है, जो कि टाइगर बहुत सुंदर है और टाइगर इज अ ब्यूटीफुल एनिमल. Everybody knows that, and you also know that. So children are very much attracted towards tiger, and even the adults and even the old age people. Okay, because tiger is extremely beautiful. He has beautiful stripes on his skin. तो टाइगर का जो शरीर पर बहुत ही सुंदर सुंदर धारियां होते हैं उसके चमड़े पर, उसके स्किन पर, और उसके जो पांव होते हैं ना, बिल्कुल वेलवेट के जैसे सॉफ्ट होते हैं, नर्म होते हैं. उसके पॉज जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं. ये जो पॉज है, ये पैर है, पैर इसके वेलवेट के जैसे नर्म होते हैं. और उसके जो ये जो धारियां आप देख रहे हैं, स्ट्राइप्स देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है. और यही कारण ये जो स्ट्राइप्स है इसको टाइगर को सुंदरता प्रदान करता है. बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी. But the tiger is not happy and is quite angry about being confined in the cage. लेकिन टाइगर जो है एक्सक्यूज मी, ये बिल्कुल खुश नहीं है और बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा है केज में, क्योंकि इसको केज में, पिंजरे में बंद कर दिया गया है. उसका जो जगह है, स्पेस है, बहुत सीमित है घूमने के लिए. इसलिए वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं करता है और गुस्से में दिखाई दे रहा है. अपने गुस्सा किसको दिखाता? वो किसी को नहीं दिखा सकता है क्योंकि पिंजरे में रह रहा है. द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वाज नॉट confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body. और कवि का कहना यह है कि अगर इस बाघ को पिंजरे में, यानी जू के पिंजरे में कैद नहीं किया जाता, तो ये कहीं भी जंगल में अगर ये रहता तो ये छिपा रहता, लंबे लंबे घासों में अपने आप को छिपाए रखता और ऐसे जगह वो अटैक करता जहां दूसरे जानवर पानी पीने के लिए आते, नदी में, स्ट्रीम के पास, कोई पानी वाले जगह पर, और तब उनको अटैक करता इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे, दैट इज द डियर. एक्सक्यूज मी. तो टाइगर जो है कोई वाटर बॉडी के पास छिपा रहता, और जैसे वाटर बॉडी के पास उस पानी वाले जगह पर कोई जानवर आता, मान लीजिए कि अगर डियर इसका सबसे मनपसंद प्रे होता है, शिकार होता है टाइगर का. प्रे का मतलब शिकार. तो उसको अटैक करता टाइगर. अगर कोई टाइगर को बाहर छोड़ा जाता, पिंजरे से बाहर, अगर वो अपना नेचुरल हैबिटेट में रहता, नेचुरल सराउंडिंग में रहता, तो इसका नजारा और रहता है, इसको दृश्य और रहता है. Also, he would have terrorized the residents of the villages around the forest area. और क्या है? और इसके साथ साथ अगर ये जंगल में घूमता फिरता, इसको फ्री छोड़ा जाता, इस जो जू वाले टाइगर को, तो क्या होता? वो आसपास के गांव वाले, जो रहने वाले जो लोग हैं गांव में, उसको भी एकदम डरा कर रखता. पूरा एकदम लोग कांपते इसके गर्जन की आवाज सुन के, इसके दहाड़ने का आवाज सुनकर लोग कांपते और भागते. बट द रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट टू दिस. लेकिन जो सच्चाई है बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, क्योंकि ये टाइगर केज में है. ये किसको डराएगा? बाहर रहता तब ना कोई गांव वालों में दहशत फैलाता. टाइगर को दहशत वाला जानवर माना जाता है. कहीं भी अगर शहर में या गांव में घुस जाए तो लोगों की खैर नहीं है. लोग एकदम भागने लगेंगे इसे देखकर. कितने लोगों को ये सफाया भी कर चुका होगा. He was confined in a cage which was made up of strong building material and he was helpless there. लेकिन ये जो टाइगर इन द जू के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस लेसन में, ये तो बिल्कुल एक पिंजरे में बंद है
और जहां स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत बिल्डिंग मटेरियल से बनाया गया है, कंक्रीट सेल में इसको रखा गया है और वहां पर वो बिल्कुल असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो चार दीवारी के अंदर फिर सिर्फ थोड़ा बहुत टहल सकता है, घूम सकता है, लेकिन अब गुस्सा किसको दिखाएगा। He could not show his power to the visitors, therefore never tried to terrorize them. तो क्या है टाइगर, अगर टाइगर जू में कन्फाइंड है तो अपना शक्ति को दर्शकों को नहीं दिखा सकता, अपना शक्ति का प्रदर्शन दर्शकों के सामने नहीं कर सकता है, इसीलिए वो कभी भी किसी को डराने का कोशिश नहीं करता है, किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है, दहाड़ता भी नहीं है, क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है जू में। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज्ड बाय द पोएट। और यहाँ कवि टाइगर को एकदम पावरलेस क्रिएचर के रूप में यहाँ पेश किया है, क्योंकि टाइगर जब जू में होता है तो पावरलेस हो जाता है और एंड ही लिव्स इन एगोनी, ही लिव्स इन डिस्पेयर। ओके, ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो ही इज अलोन। और कवि कहते हैं कि रात्रि के समय भी ये जो बाघ है, ये जो टाइगर है, अकेला रहता है पिंजरे में। Hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars। और रात में टाइगर और कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि वो क्या सुनता है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स, पुलिस का जो व्हीकल्स निकलते हैं उसको आवाज को सुन सकता है और स्टार्स को देखता है। Hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars। और स्टार्स को देखने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता है जो टाइगर केज में रहता है। The cage life has totally changed the tiger's personality। और टाइगर का जो व्यक्तित्व को पूरी तरह से एकदम बदल दिया है इसका केजेड लाइफ, मतलब एक केज में ये इसको बंद करके रखा गया है तो इसकी जिंदगी पूरी एकदम बेकार हो गई। टाइगर अपना पावर नहीं दिखा सकता, अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है। टाइगर एक पावरलेस क्रिएचर के जैसे वो जू में बंद पड़ा है। The poet is trying to say that the animal which is famous for its fearlessness and freedom is confined and sad due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage। तो यहां पर कवि यह बताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो जानवर, जो कि टाइगर है, इतना फेमस जानवर है और बहुत ही खतरनाक जानवर माना जाता है टाइगर को। इतना खतरनाक जानवर कोई होता नहीं। टाइगर को किंग ऑफ द जंगल इसीलिए कहा गया है, बिकॉज ऑफ इट फिरोसियस नेचर। तो इसका फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, इसको आजादी नहीं दी गई है, बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन अ केज एंड ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन प्लेजर हैव कन्फाइंड द टाइगर इन अ केज। सो लुकिंग एट हिम इन द जू, ह्यूमन बींग wants to take pleasure by seeing the tiger, how powerless the tiger is in the zoo. The comparison between wild animals' freedom and their lives in captivity is the theme of Leslie Norris' poem A Tiger in the Zoo। और यही तुलना किया गया है वाइल्ड एनिमल्स फ्रीडम और उनका लाइफ जब होता है कैप्टिविटी में, जब उनको कोई बंद पिंजरे में रखा जाता है और कोई जानवर को खुले मैदान समझ लीजिए, खुले जंगल में रखा जाता है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, यही मेन थीम है लेस्ली नॉरिस के पोएम का। यही सेंट्रल आइडिया है। द पोएट एग्जामिन्स द फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड इम्प्रिजनमेंट दैट अ टाइगर इन अ जू एक्सपीरियंसेस एज वेल एज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एनिमल्स वाइल्ड अनटेम्ड सोल एंड द कंस्ट्रेंट लाइफ इट इज फोर्स्ड टू लिव इन कैप्टिविटी। और इस कविता में यहां कवि ने फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड इम्प्रिजनमेंट, फीलिंग्स ऑफ लॉस और इम्प्रिजनमेंट को प्रस्तुत किया है कि एक टाइगर जो है जिस प्रकार से उसके फीलिंग्स रहते हैं जू में और जू से बाहर, इसके बारे में दर्शाने का कोशिश किया है कि जब इसको कैप्टिविटी में रखा जाता है, इसको कैप्टिव बनाकर, बंदी बनाकर पिंजरे में, जू में रखा जाता है, तो टाइगर का जिंदगी जो होता है पावरलेस हो जाता है। ये उसका एक सीमा रेखा के अंदर ही उसको रहना पड़ता है एंड ही कैन नॉट शो हिज पावर। तो इसी चीज को दर्शाया है कि टाइगर को कैप्टिव बना देने से वो कितना एगोनी और लोनली फील करता है। नेक्स्ट,
दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो कविता है अ टाइगर इन द जू, this gives a contrast between a tiger in the zoo and the tiger in the natural habitat। इन दोनों को तुलना किया गया है, किस प्रकार से एक टाइगर जू में रहेगा, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसका पर्सनैलिटी कैसा रहेगा, और जब टाइगर अपने नेचुरल सराउंडिंग में चले जाएगा मतलब जंगल में, तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो कविता है टाइगर इन द जू से शुरू होता है, फिर जंगल के बारे में दर्शाया गया है कि टाइगर इस जंगल में कैसा इसका पर्सनालिटी रहेगा, कैसा इसका शक्ति प्रदर्शन रहेगा, ये सारे चीज़ों को दर्शाया गया है कि टाइगर जो है जंगल में कैसा रहेगा उसका बिहेवियर, और जू में रहेगा तो कैसा उसका बिहेवियर रहेगा। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड सी व्हिच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। अब हम लोग इस स्टैंजा को पढ़ेंगे, ये जो टाइगर इन द जू जो पोएम है, और यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ बता रहा है टाइगर इन द जू के बारे में और कौन सा बता रहा है टाइगर इन द जंगल या टाइगर आउटसाइड द जू के बारे में। तो अलग अलग स्टैंजाज में, पैराग्राफ्स में ये छोटा सा पोएम है, बहुत सुंदर तरीके से लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। You can see this picture. A tiger is caged here, while a tiger lives in his natural habitat. Natural surrounding में वो देखिए कितना एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो पोएम है, He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. He stalks in his vivid stripes. उसका जो कलरफुल स्ट्राइप्स है, उसके इतना सुंदर जो ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स है, धारियां है उसके शरीर पर, देखिए धारियां है, ब्यूटीफुल ब्लैक धारियां है, कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं टाइगर पर। और ये क्या करता है, वॉकिंग कर रहा है। पहला वाला जो पैराग्राफ है, और टाइगर इन द जू के बारे में बताया गया है। टाइगर पिंजरे में एक जू में रखा गया है, उसी के बारे में दर्शाया गया है कि ये क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, धीरे धीरे स्लोली वॉकिंग कर रहा है अपने छोटे से कमरे में जहां पर रखा गया है। कितना वॉकिंग कर रहा है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, थोड़ा दूर ऐसे जाता है, फिर वापस आता है, फिर घूमता है, और किस पे, अपने पग पर। उसके पग कैसे है, पूरे वेलवेट, एकदम वेलवेट के जैसे नरम होते हैं, मखमल के जैसे नरम होते हैं। तो वो घूम रहा है अपने केज में, पिंजरे में, क्योंकि पिंजरे का जो एरिया बहुत कम है, वही कम एरिया में घूम रहा है और बिल्कुल शांत भाव से दिखाई दे रहा है। गुस्से में है लेकिन वो अपने गुस्से को निकाल नहीं पा रहा है। ये जो टाइगर है पिंजरे में बंद है, अपने गुस्से को दिखा नहीं पा रहा है, अपने गुस्से को बिल्कुल दबाए रख रहा है। गुस्सा आ रहा है इसे, लेकिन गुस्सा किसको दिखाएगा, किसी को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि जो भी दर्शक आते बाहर में रहते हैं, केज्ड जो टाइगर है उसको देखने के लिए दर्शक आते हैं और देखकर आनंद लेते हैं, लेकिन टाइगर कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ अपना जो केज्ड एरिया में ही वो घूमता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब सेकंड पैराग्राफ में कवि यह बताता है कि टाइगर अगर जू से बाहर रहता तो उसका बिहेवियर कैसा रहता, वो क्या करता। जू से बाहर, जू के अंदर रहकर तो कुछ नहीं कर सकता है, किसी को अटैक भी नहीं कर सकता है, कोई जानवर भी अंदर में दूसरा नहीं है जिसको अटैक करे, तो उसको बंद एक शेल में रखा गया है। और जब टाइगर अगर बाहर रहता, जू से बाहर अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहता, अपने प्राकृतिक जगह में रहता, जहां जंगल या फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या करते, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी हाइडिंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब हाइडिंग, हाँ, वो छिपा हुआ रहता है एक शैडो में, एक छायादार जगह में अपने आप को छिपाए रखता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घास से होते हुए धीरे धीरे वो पास करता, धीरे धीरे आगे बढ़ता। स्लाइडिंग का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। पासिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कहां, नियर द वाटर होल, ये कहां जाता, ऐसा जगह जहां पानी का स्रोत हो, जहां पर हिरन क्या है पानी पीने के लिए जाते हैं। तो
टाइगर जंगल में क्या करता, वो हिरन का शिकार में वो लगे रहता और धीरे धीरे लंबे घासों से होकर वो गुजरता और जैसे डियर हिरन पानी पीने को जाता वैसे ही उस पर अटैक करता अपने शिकार पर। तो हिरन इसका बहुत ही मनपसंद शिकार है, किसका, टाइगर का। तो टाइगर अगर बाहर में रहता तो उसका बिहेवियर अलग रहता, वो बिल्कुल अटैक करता उस हट्टे कट्टे डियर, प्लम्प का मतलब हट्टा कट्टा तगड़ा जो डियर है उसको अटैक करता। नेक्स्ट, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। या फिर कवि ने बहुत सुंदर तरीके से यहां प्रस्तुत किया है कि टाइगर बाहर रहता तो कैसा रहता, जंगल से बाहर, वो आसपास जो घर रहते जंगल के आसपास, वहां पर उस घर के पास जाकर जहां लोग रहते हैं वहां जाकर वो दहाड़ता। ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी ग्राउलिंग नियर हाउसेस, कहां पर, जंगल के कोने में, जंगल के कॉर्नर में वो जाकर दहाड़ता। अपने व्हाइट फैंग्स, उस अपने सफेद जॉज को बाहर निकालता, अपने मुंह को खोलता, अपने पांव जो क्लॉज है उसके 7 क्लॉज होते हैं जो पंजा, अपने पंजे की शक्ति का प्रदर्शन करता। अगर टाइगर कहीं किसी घर के आसपास चले जाता, जंगल के कोने में जहां लोग रहते हैं, और पूरे गांव में दहशत फैला देता। तो टाइगर क्या करता है, अगर कोई गांव में घुस गया है तो पूरे गांव में लोगों को भयभीत कर देगा, पूरा दहशत फैला देगा, लोग इधर उधर भागने लगेंगे अपने जान को बचाने के लिए। तो यही 3rd पैराग्राफ में इसी का चर्चा किया गया है। क्या करता, अपना मुंह खोले रहता, व्हाइट फैंग्स, अपने जॉज खोलता, अपने क्लॉज को, अपने पंजों को दिखाता और किस प्रकार से स्नार्ल मतलब दहाड़ता जिससे कि लोग डर जाते हैं। नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और 4th पैराग्राफ में फिर टाइगर इन द जू के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो टाइगर है ये बार्स में कैद है। देखिए टाइगर इन द जंगल को देखिए, टाइगर इन द जू को देखिए, दोनों के बारे में, दोनों का पिक्चर देख पा रहे हैं आप। तो जब ये कैद रहता है कोई कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट का बना हुआ जो सेल होता है, प्रिजन होता है, सेल मतलब प्रिजन होता है, तो प्रिजन के जैसे उसको बंदी बना लिया जाता है और अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को, अपने शक्ति को बिहाइंड बार्स, बार्स के अंदर, वो जो आयरन बार्स जो बने रहते हैं जहां उसको रखा जाता है आयरन बार्स में, वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है, अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या करता है, जितना लंबा केज रहता है, पिंजरा रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है। विजिटर्स उससे खेलना चाहते हैं लेकिन विजिटर्स को बिल्कुल इग्नोर करके चलता है। विजिटर्स को अपना पावर नहीं दिखा सकता है दर्शकों को, क्योंकि ये टाइगर केज में बंद है। जब केज में बंद रहेगा तो किसी को अपना पावर नहीं दिखा सकता है, उसको वही अपने सीमित एरिया में ही रहना पड़ता है। वो विवश है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको गुस्सा भी आएगा लेकिन गुस्सा विजिटर्स को नहीं दिखा सकता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। ये भी टाइगर इन द जू के बारे में चर्चा किया गया है लास्ट लाइन में। वो अपने सेल में रहता है और रात्रि को अंतिम आवाज सुनता है, किसका, पेट्रोलिंग कार्स। He hears the last voice, इसीलिए लिखा गया अंतिम वॉइस, अंतिम आवाज सुनता है। जो पुलिस अपने जीप में पेट्रोलिंग ड्यूटी करते रहते हैं केस से बाहर, तो उसके आवाज को सुनता है पेट्रोलिंग कार्स के, और अपने चमकते हुए आंखों से, घुराए हुए नजरों से देखता है। कहां देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो चमकते हुए तारों की तरह देखता है। तो और विवश है, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये जब जू में है तो बस वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज को सुन सकता है और अपने चमकते हुए चमकदार सुंदर आंखों से उस ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए तारों को देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो यही लास्ट लाइन दर्शाता है। सो वी हैव सीन द कंपैरिजन बिटवीन
टाइगर इन द जू एज वेल एज अ टाइगर इन द जंगल। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बहुत सुंदर तरीके से कवि ने किया है और यही थीम है इस पोएम का। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ this lesson, this poem, my dear students. I will come with a new topic in the next class. Till then, goodbye. Thank you.